guys, what's up and welcome back to my channel. This is Jamie. I hope all of you are doing super duper great. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं about the wedding trends for the year 2021. Yes, तो आज के वीडियो में we are going to talk about कि इस साल 2021 में शादी के weddings के क्या क्या trends होने वाले हैं. सबसे पहले तो मैं जस्ट आपको बता दूं दैट आई एम नॉट एट होम, सो दैट इज़ वाई आई डोंट हैव अ प्रॉपर मतलब कैमरा सेटअप, कुछ नहीं है मेरे पास. तो मैं अपने सेल्फी स्टिक और मोबाइल कैमरा में शूट कर रही हूँ. तो मैं ना कुछ दिन से बैठ के रिसर्च भी कर रही थी. मैंने अपने दोस्तों से भी बात की है. अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हु गॉट मैरिड this year, who are planning to get married this year, and you know some of the wedding planners who are planning weddings this year. And also I did a little bit of online research as to how people are planning weddings this year, and I have collected a lot of points to tell you guys. तो अगर आप इस साल अपना शादी प्लान कर रहे हो, I'm sure कि a lot of you would have postponed your wedding फ्रॉम लास्ट ईयर 2020 से. बहुत सारे लोगों ने पोस्टपोन कर लिया होगा कि मतलब चलो इस साल नहीं, अगले साल जब बेटर होगा तो अगले साल करेंगे, 2021 में करेंगे. तो आई एम श्योर कि इस साल बहुत सारी शादियां होने वाली है. सबसे पहले तो मुबारक सबको. एंड लेट्स सी, अगर आप इस साल अगर अपनी शादी प्लान कर रहे हो, सो take care of these particular points that I'm going to tell you. Let's get started. So guys, the number one point that you need to remember is that कोविड कहीं नहीं गया है. ठीक है, कोविड इज़ राइट हियर, कोविड इज़ राइट हमारे साथ. एंड कभी भी किसी को भी हो सकता है. इवन नाउ वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल. आई नो दैट 2020 जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे शादियों में एवरीबडी वे सुपर केयरफुल बिकॉज बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे. इवन द नंबर ऑफ गेस्ट वेर रेस्ट्रिक्टेड. बट आई नो दैट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, अभी 1 साल हो गया है एंड हम लोग सब थोड़े से चिल्ड आउट हो गए हैं. बट प्लीज़ 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 ऐसे मत करना, because in case you're following the news, so all of us, we know that COVID numbers are rising again, the cases are rising again, so we have to be super duper careful. अगर आप अपनी शादी होस्ट कर रहे हो इस साल, so you need to make sure that you guys are wearing mask. You have to make sure that your guests are wearing mask. कम number of guests को ही रखिए. Reduce the number of guests. It has to be like less people and maximum love. And make sure there are sanitization stations, sanitizers provided to all your guests. So guys, coming to the second points, actually 2020 में बहुत सारे ट्रेंड सेटिंग चीज़ें हुए हैं related to wedding industry. तो अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे स्टेकेशन वेडिंग्स हो रहे हैं आजकल, बहुत सारे डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रहे हैं जहाँ पे इट्स जस्ट द क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स हु आर अटेंडिंग द वेडिंग. तो इट्स लाइक गेट मैरिड नाउ एंड पार्टी लेटर. सो गेट मैरिड नाउ विद योर क्लोज वंस and then party later with all your extended relatives and friends. So I think that is quite in. So guys, coming to point number 3, अगर आप वेन्यू की बात करोगे तो again because of COVID, people are not preferring enclosed spaces. People are not preferring closed halls, AC halls and all of that. Nowadays people are preferring open spaces, open lawns and open venues for their wedding, because it is very important that you maintain social distancing. It is very important that थोड़ा खुला मतलब जगह होना चाहिए, because obviously enclosed places में infection होने के chances ज़्यादा है, ये हम सबको पता है. And also if you actually see, the number of weekday weddings has increased. तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो you can also think about a weekday wedding. We all know that weekends के लिए venue book करना मुश्किल होता है. weekends के लिए venue का price भी ज़्यादा होता है. And since all of us we are working from home, सब लोग घर पे ही हैं, so you can check with your guest list, you can check with the people who are coming for your wedding. अगर वो लोग weekday को available है, so get married on a weekday. You can also save a lot of money. So guys, point number 4 is not connected to COVID. I just realized that every other point I'm just relating to COVID. So point number 4 is couple hashtags. Over the last 2 years, अगर आप देखोगे तो all of us, we are active on social media, and this hashtag thing has become actually quite a trend. तो जिनकी भी शादी हो रही है उनका couple hashtag बनाया जाता है और उस couple hashtag को मतलब पूरा ट्रेंड किया जाता है, be it Instagram, Facebook और Twitter, mainly on Instagram.
सो आई हैव सीन दिस अमॉन्ग्स्ट अ लॉट ऑफ कपल्स ऑल्सो। आजकल क्या किया जाता है, उनका जो कपल हैशटैग होता है उसका बैनर बनाया जाता है एंड उसको वेडिंग डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। यू नो मेनी टाइम्स वो जो LED लाइट्स होते हैं उससे मतलब वो बैनर बनाया जाता है कपल हैशटैग्स का। एंड यू नो इट्स एक्चुअली क्वाइट कूल आई फील, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल बिकॉज वो जो हैशटैग है उसको यूज़ करके आप सोशल मीडिया पे आपकी शादी के सारे पिक्चर्स एक बार में सर्च कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी यूज़फुल ऑल्सो दैट वे। सो यू नो आई थिंक यू शुड मेक श्योर दैट यू क्रिएट योर ओन कपल हैशटैग। उसको आप अपने वेडिंग डेकोरेशन पे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू टेल ऑल योर फ्रेंड्स टू यूज़ दैट पर्टिकुलर हैशटैग व्हेन दे आर पोस्टिंग योर वेडिंग पिक्चर्स सो दैट यू कैन फाइंड देम लेटर ऑन सोशल मीडिया। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, अगर हम मेकअप और ड्रेसिंग की बात करेंगे तो ये चीज़ एक्चुअली मुझे बहुत स्वीट लगी है। So I've actually seen that a lot of brides have actually gone back and taken their grandmothers and mothers wedding sari, wedding lehenga and redesigned them and wore them, and I think it's super sweet and यार मतलब ये चीज़ तो continue होनी चाहिए। Now the sixth point is about venue and decoration. So I have actually seen that, you know, over the last year a lot of people are doing their weddings at home. And they are doing the decorations, you know, themselves, खुद ही कर रहे हैं decorations with their friends and family. So again this year that is going to continue. There is going to be a lot of intimate small weddings, DIY weddings at home. On that note, please do go and check out my channel. अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो मेरे पास बहुत सारे डेकोरेशन की वीडियोस है, DIY डेकोरेशन वीडियोस जो आप खुद ही कर सकते हो। And in case you haven't yet subscribed to my channel guys, please do subscribe to my channel. I post new videos every week, every Wednesday. Now अगर हम वेडिंग थीम्स की बात करें, वेडिंग थीम्स एंड कलर कॉम्बिनेशंस की बात करें तो एक्चुअली पता है मैंने जो नोटिस किया है, इट्स लाइक टू एक्सट्रीम काइंड ऑफ सेलेक्शंस दैट पीपल गो फॉर। तो ऐसा हो गया, मतलब आई फील दैट यू नो अ लॉट ऑफ ब्राइड्स बिकॉज यू नो दे कैन नॉट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज हाउ द सोसाइटी माइट थिंक, और यू नो मतलब ये क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, वो वाली चीज़ तो अब है ही नहीं बिकॉज ऑब्वियसली आपकी क्लोज फैमिली अटेंड कर रही है। सो अ लॉट ऑफ ब्राइड्स हैव सीन दैट दे हैव गॉन बोल्ड ऑन देयर वेडिंग्स एंड दे हैव लाइक लिटरली वोर व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे फील लाइक, यू नो, स्टेटमेंट ड्रेसेस एंड स्टेटमेंट पीस ऑफ ज्वेलरी, एंड आई थिंक दैट्स रियली कूल। यू नो if you can wear what you want and you know if you can dress like you want on your most important day, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। एंड ऑल्सो मैंने एक्चुअली देखा है कि मतलब लास्ट ईयर से ये वाली चीज़ बहुत चल रही है, पेस्टल कलर्स। एवरीबडी इज इनटू पेस्टल कलर्स एंड न्यूड शेड्स यू नो दीज डेज। सो ऑब्वियसली व्हेन देयर इज अ वेडिंग गोइंग ऑन, सारी जो क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स होते हैं सबका वो कलर थीम होता है एंड सारे कलर थीम के अकॉर्डिंग ही ड्रेस करते हैं आजकल बिकॉज यू नो ऑब्वियसली फॉर द फोटोज़ एंड एवरीथिंग। एंड मोस्ट ऑफ द जो भी मैंने शादियों के फोटोज़ देखे हैं दे आर ऑल पेस्टल color combinations. So pastel color combinations is totally in this year. So guys, coming to the next point which is very important, you know, because of the pandemic, because of the whole situation that has happened last year, you know, हमने बहुत कुछ सीखा है। We have learned a lot of lessons, one being how to give back to the environment, you know, how to be gentle with the environment. तो ये चीज़ तो हमने over the last year I'm sure हम सब ने realize किया है। And when it comes to weddings also, green weddings and sustainable weddings are totally in. Everybody is quite conscious कि मतलब you know ज़्यादा wastage नहीं होना चाहिए चीज़ों का। तो उस चीज़ को नोट में लेके मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। कुछ टाइम पहले जब दिया मिर्ज़ा की शादी हुई थी तो आई वॉज एक्चुअली गोइंग थ्रू हर पिक्चर्स एंड मैंने देखा कि उनका जो स्टेज है इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म, इट्स जस्ट अ डाइज और ऐसे पीछे बस प्लान्स है। दे डिड नॉट हैव अ प्रॉपर स्टेज। मतलब कुछ फोटोज तो मैंने ऐसे देखे हैं कि उनके कुछ फंक्शंस के लिए पीछे बस बोगेनविला का एक मतलब ऐसे पूरा ट्री है, बोगेनविला के ऐसे बुशेस जैसे हैं, फ्लावर्स लगे हैं उस पर एंड दे आर जस्ट डूइंग देयर फंक्शंस एंड क्लिकिंग फोटोज इन फ्रंट ऑफ दैट एंड those photos are so beautiful, they're so beautiful. मैंने और भी बहुत सारी शादियाँ देखी हैं which is you know out in the open. तो अगर आप ओपन में शादी करते हैं, ओपन वेन्यू में शादी करते हैं तो make use of all the green elements that are there, be it lawn, be it bushes, be it trees, you know, make use of all the green elements because they look beautiful in photos. And then when you have plants and flowers around, you need minimum decorations guys. फ्लावर्स को प्लग करके कहीं पे लगा के डेकोरेट करने से अच्छा जहाँ पे पेड़ है, जहाँ पे फ्लावर्स है, वहाँ जाके फ़ोटो खींच लो, यू नो, मेक सेंस राइट।
अगर हम वेन्यू की भी बात करें तो वेन्यू में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको टेक केयर करना होगा। अगर हम खाने की बात करें फॉर एग्जांपल, सो अगेन बुफे सिस्टम थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ स्टाइल हो गया है, बिकॉज राइट नाउ ऑल्सो पीपल आर क्वाइट स्केर्ड कि मतलब सब लोग जाके अगर एक ही जगह से प्लेट उठाएंगे, सब जाके एक ही स्पून यूज़ करेंगे, तो उससे कोविड का रिस्क मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड पीपल आर ऑल्सो गोइंग टू हेसिटेट इवन इफ दे कम फॉर द वेडिंग। आई एम श्योर कि सबके बैक ऑफ माइंड में यही चल रहा होगा कि मतलब अरे ये वाला स्पून कैसे टच करूँ, ये वाला कैसे लूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट जो भी चीज़ें हैं डोंट कीप इट कॉमन। सो बुफे सिस्टम ना रखिए फॉर सम टाइम, मेक श्योर कि मतलब अपने अपने सीट पे लोगों को बिठा के, अगर असाइंड सीटिंग हो सकता है, अगर आपके जो टेबल्स है वहाँ पे असाइंड सीटिंग हो सकता है, कौन से गेस्ट का कौन सा टेबल है अगर आप लिख के रख सकते हो तो मतलब बहुत ही बढ़िया होगा। तब तो सीट्स भी एक्सचेंज नहीं होंगे, पीपल विल कम एंड सिट एट अ प्लेस एंड एंजॉय द वेडिंग। सो मेक श्योर दैट you have assigned seating, and if possible do not keep buffet system. सो गाइज दिस ईयर ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें लास्ट ईयर जैसी होने वाली हैं। कोविड वेडिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो वर्चुअल वेडिंग वाला जो वर्ड है, वर्चुअल वेडिंग एंड जूम मीटिंग वाला जो वर्ड है, हम इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इस साल भी बहुत सारी शादियां ऐसे होने वाली हैं बिकॉज अभी भी बहुत सारे जगह से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है। सो इन केस यू आर हैविंग अ वेडिंग दिस ईयर, मेक श्योर जो वर्चुअल चीज़ें हैं जिसे आप अपनी शादियों को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, मेक श्योर कि आप वो सारा सेटअप कर लें। Be it inviting your guests and be it setting up a Zoom call and letting all your guests see what is happening, or be it live streaming on Facebook or YouTube. तो मेरी जब फ्रेंड की शादी हुई थी तो हम सब ने एक Zoom कॉल किया था एंड वी कुड एक्चुअली सी दी एंटायर वेडिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मेरी जब कज़न की शादी हुई थी तो उन्होंने लाइव स्ट्रीम किया था YouTube पे। तो ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग करने से ऑब्वियसली वी डिडंट फील लाइक वी आर मिसिंग आउट ऑन द वेडिंग, बिकॉज कैमरा में जो जो कैप्चर हो रहा था एवरीथिंग वी वर सीइंग फ्रॉम आवर होम्स। ऑब्वियसली फिजिकली प्रेजेंट होने जैसा नहीं होगा, बट ऐसे टाइम पे मेक श्योर कि आप ये सारे जो फैक्टर्स है उसका बहुत टेक केयर करें, बिकॉज इस साल भी बहुत सारे आपके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो नहीं आ पाएंगे शादी में। तो ये जो वर्चुअल चीज़ें हैं जिससे आप मेक श्योर कर सके कि वो पार्टिसिपेट कर सके, सो मेक श्योर दैट यू डू दैट। एंड ऑल्सो जहाँ पे आपकी शादी हो रही है, जो आपका वेन्यू है, आप वहाँ पे बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा सकते हैं, बड़ा सा स्क्रीन लगा सकते हैं, ताकि आपके रिलेटिव्स आपके लिए विशेस भेज सके। अगर किसी को संगीत में डांस करना है वो अपने घर से रिकॉर्ड करके भेज देंगे, आप वहाँ पे प्ले कर सकते हो, ऑनलाइन संगीत कर सकते हो। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस सो एवरीबडी कैन बी अ पार्ट ऑफ योर वेडिंग. The last point I would like to say is about wedding photography and videography. Be it COVID situation or not COVID situation, I would stress on the fact that हमने बात कर लिया कि I would stress on the fact that make sure you get a good videographer and photographer in hand. क्योंकि be it अभी weddings छोटी हो गई हैं, be it आपने कम गेस्ट को बुलाया है, even if it is like a DIY wedding at home, ऐसा मत सोचना कि यार शादी तो घर पे कर रहे हैं, छोटे मोटे फोटोग्राफर को बुला के वो कर लेंगे। नो, बिकॉज एक चीज जो बचेंगी, दैट इज योर मेमोरीज, दैट इज योर वेडिंग एल्बम एंड वीडियो थ्रू आउट योर लाइफ, दैट्स गोना बी देयर विथ यू. सो मेक श्योर दैट इवन इफ इट इज अ स्मॉल इंटीमेट वेडिंग, इवन इफ इट इज अ DIY wedding that you're doing at home, make sure you get a good videographer and photographer in place, and उसमें आप spend कर लो थोड़ा, it's okay. So guys, that's it in this video. These are some of the wedding trends जो मुझे लगा it is going to happen in 2021. It's gonna stay for this year. So in case you're planning weddings this year, make sure that you watch my video. In case you know somebody who is planning a wedding this year, make sure you forward this video to them so that they also get thoda enlightened about the things that are happening for 2021 weddings. Also let me know आपको ये video कैसा लगा in the comment section below. Make sure you subscribe to my channel and stay tuned for the next video, guys. Bye bye and lots of love.